मैं रिपीट करती हूँ, अक्षय तृतीया किसके जन्मदिन के प्रसिद्ध है? Who born on Akshay Tritiya? मैम क्या क्वेश्चन अगेन रिपीट कर सकते हो? हाँ, Who was born on Akshay Tritiya? अक्षय तृतीया के दिन किसका जन्म हुआ था? Okay, thank you. My first question is, सती कौन है? Who was सती? Yes, sir. दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पहली पत्नी। दक्ष शिव जी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? हाँ जी निसर्ग बोलिए। क्योंकि दक्ष को ऐसा लगता था कि भगवान शिव ने मेरा अपमान किया है, तो मैं उनको यज्ञ में न बुलाकर उनसे अपने अपमान का बदला लूं। दक्ष प्रजापति ना पत्नीए मैना देवीए तप કરી અને સતી પાસે શું વરદાન માંગ્યું? યસ નિસર્ગ. હા, એટલે દક્ષ પ્રજાપતિની પત્નીએ તો એટલે હિમાલયના પત્ની આમ તો મેના હતી ને, મેનકા જતી મેના. હા, મેના દેવી. હા, એટલે એમણે કીધું કે તમે મારા ઘરે જે છે એ પુત્રી બનીને પ્રગટ થાવ, એટલે દેવી માં દુર્ગા દેવી પાસે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હા હા હા. ભગવાન કૃષ્ણ ના ફોઈનું નામ શું હતું? હા નિસર્ગ. કુંતી. પાંડવો ના પછી એટલે એમના જે સ્વર્ગારોહણ પછી એમનું રાજ્ય જે છે એ કોણે ચલાવ્યું? પાંડવોનું રાજ્ય કોણે ચલાવ્યું? એમના પાંડવોના ગયા પછી. એટલે પાંડવોના પુત્રો પણ મરણ પામ્યા હતા અને ત્યાર પછી. હા નિસર્ગ. અર્જુનના પૌત્ર અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત, એટલે અર્જુનના પૌત્ર પરીક્ષિત. મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર ની સાથે પરશુરામનો શું સંબંધ હતો? એક્ઝેક્ટ સંબંધ તો એટલે આપણે કહી શકાય કે ભાઈ હતા આમ તો. ના, મામા ભાણા હતા. પરશુરામ ભાણા હતા વિશ્વામિત્રના. એટલે અજ્ઞાતવાસમાં દ્રૌપદીનું નામ શું હતું? જે 12 વર્ષ પછીનો એક વર્ષ અજ્ઞાતવાસનો હતો, એમાં દ્રૌપદી અને બીજા બધા જ પાંડવોએ જુદા જુદા નામ રાખ્યા હતા પોતાના. એમાં દ્રૌપદીનું નામ શું હતું? સયાન્દ્રી હતું એમનું. એમની સાથે સયાન્દ્રી. અહલ્યા એમને કોઈએ શ્રાપ આપ્યો હતો, તો અહલ્યાને કોણે શ્રાપ આપ્યો હતો? અહલ્યા જે રામના પગથી અડકવાથી પથ્થરમાંથી ફરી પાછા અહલ્યા બની ગયા, તે અહલ્યા. હા નિસર્ગ. ગૌતમ ઋષિ, તેમના પતિ ગૌતમ ઋષિ. રાજા દશરથ ના પિતાનું નામ શું હતું? નિસર્ગ. અજ. હા, રામ અને લક્ષ્મણ એમને જંગલમાં કયા કયા રાક્ષસોનો વધ કર્યો જ્યારે તેઓ વિશ્વામિત્રની સાથે ગયા હતા ત્યારની વાત? પહેલા તો તાડકા આવી, તાડકાનો વધ કર્યો પહેલા, એટલે વચ્ચે રસ્તામાં, ત્યાં આશ્રમમાં નહીં પણ રસ્તામાં જે છે તાડકા આવી, તો સૌથી પહેલા વધ તાડકાનો કરે છે. એના પછી જે છે એ આશ્રમમાં સુબાહુ અને મારીચ આવે છે, તો મારીચને 100 યોજન દૂર ફેંકી દે છે અને વધ સુબાહુનો કરે છે. સીતા માતા એમના માતાનું નામ?
સીતાના માતા, મધર ઓફ સીતા. ધ્રુતિબેન, હા જાનકીબેન. सुना है ना? એકચ્યુઅલી આપણને જે રીતે ખબર છે સ્ટોરી મુજબ કે સીતા માતા આપણે જમીનમાંથી પ્રગટ થયા હતા. તેમણે એ લાવ્યા હતા, રાજા જનક એમને લાવ્યા હતા અને નીચેથી આપણે ભૂમિ જેને કહીએ ને ત્યાંથી પ્રગટ થયા હતા. તો ખરા એમની પાલક માતા સુનૈના હતા. યુ આર રાઈટ. કેવટે કઈ નદી પાર કરાવડાવી હતી રામને? નિસર્ગ નહીં બોલે. આપણે અહીંયા તમારું સેશન સમાપ્ત કરીએ છીએ. ત્રણેય ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે હજી યુટ્યુબ પર લાઈવ અમારું જે સ્ટ્રીમિંગ છે તે જોતા રહેજો. તમારામાંથી કોઈ એક કે બે જણને અમે ફાઇનલ રાઉન્ડની અંદર લઈશું અને તે વખતે જોઈએ કોનું નામ આવે છે ને કોણ આનાથી વધારે સારું પરફોર્મ કરે છે. આપ બધાનો ધન્યવાદ. सब कंटेस्टेंट को मेरे नमस्कार और हरे कृष्णा. प्रश्न शुरू करते हैं. पहले क्वेश्चन से, हाउ डिड द बॉडी ऑफ सती ब्रेक इनटू द 51 पीसेस? सती के शरीर के 51 टुकड़े कैसे हुए? क्या सुनने नहीं देगा. अर्चना बेन. जब सती की मृत्यु हुई उसके बाद में उसके शव को लेके शिव भगवान पूरे इंडिया में अपने पूरे भारतवर्ष में घूमे. जब वो शव के जहां जहां टुकड़े होते गए और वो जहां जहां गिरते गए वहां सब ज्योतिर्लिंग बनते गए. Why do we touch feet? हम पैर क्यों छूते हैं बड़ों के? माता पिता शिक्षक उनके पैर क्यों छूते? अर्चना बेन. जब हम किसी भी बड़े के जो हमारे पैरों के सबसे बड़े अंगूठे के नाखून को छूते हैं तो हम उनसे उनकी बुद्धि चाहते हैं. तो वो हमें जब वो उसको छूने से उनका सही अच्छी बुद्धि हमारे भीतर भी आती है, इसलिए हम उनके पैर छूते हैं. किसी और को आंसर देना है? राधिका जी. इनसे अलग है आपका जो उत्तर? जी जी. उत्तर अलग हो तो भी बताना. जी बताइए. जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो हम अंगूठों को टच करते हैं दोनों, जैसा अर्चना जी ने बताया. तो उससे जो उनकी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो हमको मिलती है और उनका जो आशीर्वाद तो हम लेते ही हैं, साथ में उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है जब हम सर को झुकाते हैं. प्रज्ञा बहन, आपका अलग है आंसर? जल्दी से बताइए. हमारे हिंदू संस्कार का मतलब वो एक प्रकार का वो नियम है कि किसी बड़े का पैर छूना चाहिए, तो उसकी वजह से हमें आशीर्वाद मिलते हैं और हमारे में संस्कार अच्छे पड़ते हैं. वो हिंदी संस्कृति की एक खासियत है हिंदुओं में. नेक्स्ट, सुखदेव की पत्नी का नाम क्या था? सुखदेव. What was the name of Sukhdev's wife? बताइए अर्चना बेन. द्रौपदी. रॉन्ग. किसी और को? नेक्स्ट, बलराम की पत्नी का नाम क्या था? बोलिए प्रज्ञा बेन. रेवती जी. ओके. किसी और को? बोलिए. वही है, जो पहला है उसका सही माना जाएगा. महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? What was the number of Maharathis who survived after the Mahabharat war? 5, 6, 9. बोलिए जिनको पता है. प्रज्ञा बेन. 11. अर्चना बेन ने हाथ ऊंचा किया है, बताइए. नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया है. जो बचे वो या जिनको जीवन दान मिला. महाभारत के युद्ध पश्चात, मैं रिपीट कर रहा हूँ, महाभारत के युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी?
राधिका जी, अर्चना जी बताइए। अंबालिका। हमने पूछा था अंबा किस राज्य की राजकुमारी थी, आपने अंबा उत्तर अलग अंबालिका दिया। की। अंबालिका ठीक की। है, ठीक है। और किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, एकलव्य के पिता का नाम क्या था? फिर से बोलिए, क्या प्रश्न? फिर से बोलिए सर। पहले हाथ ऊंचा कीजिए और फिर जवाब दीजिए। हाथ ऊंचा किए, मैं आपको बोलूंगा। प्रज्ञाबेन बताइए। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया है। प्रश्न समझ में नहीं आया। एकलव्य के पिता का नाम क्या था? What was the name of एकलव्य's father? એકલવ્યના પિતાનું નામ શું હતું? आपकी आवाज नहीं आ रही जरा मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के धनुष का नाम क्या था? कर्ण के धनुष का नाम क्या था? किसी को? अर्चना बेन, पास। परशुराम के माता पिता का नाम क्या था? What was the name of परशुराम्स पेरेंट्स? प्रज्ञा बेन बताइए। उनकी माता का नाम रेणुका था। सर मैं ओके, आधा जवाब दिया। सर दोनों का पूछ रहे, पेरेंट्स का पूछ रहे हैं। राधिका जी बताइए। हाँ, उनके माता का नाम रेणुका और उनके पिता का नाम जमदग्नि। ओके। विच प्लेस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल अल्टर ऑफ ब्रह्मा? किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञीय वेदी कहा जाता है? यज्ञ की वेदी। किस स्थान को ब्रह्मा की वेदी कहा जाता है? बोलिए राधिका जी। पुष्कर, राजस्थान में जो है। अर्चना जी। सर सेम जवाब है, अर्चना जी? पुष्कर, राजस्थान। ठीक है। द्रोणाचार्य किनके पिता थे? सॉरी, अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पिता कौन थे? क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम द्वारा मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी किस राजा का था? द्रोणाचार्य का पुत्र, उसका नाम था अश्वत्थामा, उसी नाम का हाथी, लेकिन वो किस राजा का था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बोल रहे हैं? प्रज्ञा बेन बोल रहे हैं, बताइए। द्रुपद राजा का। द्रुपद राजा। लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद पांडव किस नगरी में जाकर रहे? लाक्षागृह से बचकर, जीवित बचकर पांडव किस नगरी में जाकर रहे? बताइए राधिका जी। राजा विराट के नगर में। लेकिन नगर का नाम क्या था? नगर का नाम याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास की माता का नाम क्या था? वेद व्यास जो थे उनके माता का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ? अर्जुन का पुत्र था जिसका नाम था इरावन। इरावन का वध किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाचार्य अश्वत्थामा के कौन थे? प्रज्ञा बेन। गुरु। मामा थे, मामा। ओके। अर्चना मैडम, आपका? जी धर्म गुरु थे। धर्म गुरु थे। आपका राधिका जी? वो मामा थे उनके।
सही है. तो अर्चना मैडम. What is the name of epic by Kalidas? कुमार संभव. सॉरी, अक्षौहिणी सेना का अर्थ क्या है? अक्षौहिणी सेना का अर्थ क्या निकलता है? हाँ अर्चना बेन बताइए. अक्षौहिणी सेना कृष्ण भगवान की थी, 18,000 सैनिकों की. किसी और को? हनुमान जी के याद में एक श्लोक बोला जाता है, किसी को आता है पूरा? मनोजवम करके जो आगे शुरू होता है, बताइए राधिका जी, बोलिए. मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये. ओके. अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? पाणिनि. राधिका जी आपने बताया, लेकिन गलत उत्तर है. और किसी को? अर्चना जी. यहाँ हमारे क्वेश्चनरी खत्म हुए. आप लोग ने जो अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके ऊपर से हम अपना नतीजा निकाल के, हो सकता है आप तीनों में से किसी एक को नेक्स्ट राउंड में बुलाएंगे, ताकि आपको वेट करना है, यूट्यूब पर बने रहना है. धन्यवाद. हॅलो, ऐका सगळ्यांनी, ज्यांना येत असेल ना त्यांनी हात वर करायचा आणि उत्तरं द्यायची. अंडरस्टूड? ओके. चला, फर्स्ट क्वेश्चन. हिडिंबा कोणाची पत्नी होती? हिडिंबा कोणाची पत्नी होती? ओके. सेकंड क्वेश्चन. सूर्य आणि कुंती याच्या मोठ्या मुलाचे नाव काय होते? पांडव 5 होते. पांडव 5 मधला सगळ्यात मोठा भाऊ कोण होता? सांग श्रवणी. युधिष्ठिर. नाही, युधिष्ठिरच्या पण मोठा होता. ओके. पुढे. जरासंघाला कोणी मारलं? जरासंघ होता, त्याला कोणी मारलं? सगळ्यात बलशाली होता पांडवांमधला, गधा चालवायचा. कोण तो? भीम त्याचं नाव. द्रौपदी कोणत्या राज्याची राजकुमारी होती? द्रौपदी कोणत्या राज्याची राजकुमारी होती? नेक्स्ट. भगवद्गीतेमध्ये एकूण किती अध्याय आहेत? 25. नाही, 5 नाहीयेत, 18 अध्याय आहेत. गुरुची मूर्ती बनवून धनुर्विद्येचे ज्ञान मिळवलेला भिल्ल पुत्र कोण? ज्याने आपला अंगठा कापून दिलेला. हा सांग श्रवणी. एकलव्य. योग म्हणजे काय? योग म्हणजे काय? ओके. नेक्स्ट. सहदेवांना ज्ञान कोणते ज्ञान होते? सहदेवांना काय ज्ञान होते? कोणते ज्ञान होते? राजा दशरथ यांच्या मुलीचे नाव काय होते? दशरथ राजाला 4 मुलं होती, पण अजून एक मुलगी होती आणि त्या मुलीचे नाव काय होतं?
श्रीरामाची बहीण नकुलाच्या आईचे नाव काय होते? पांडवांमधला एक नकुल होता आणि त्या नकुलाच्या आईचे नाव काय होते? माद्री. जगाची सुरुवात सर्वप्रथम कोणत्या प्राण्यांपासून झाली? जगाची सुरुवात कमळामध्ये डायनोसॉर. श्रावणी तू सांग श्रावणी. मी बोल. माकड. नेक्स्ट. श्रीकृष्ण पृथ्वीवर किती वर्ष राहिले? श्रीकृष्ण पृथ्वीवर किती वर्ष राहिले? 125 वर्ष. श्रीमद भगवद्गीतेच्या 18व्या अध्यायातील शेवटचे 5 श्लोक कोण बोलतात? They are not ready. भगवान श्री कोण? येस, संत एकनाथ. संजय. भगवान श्रीकृष्ण कोणाच्या अत्याचारापासून मथुरा सोडून द्वारकेत निघून गेले? श्रीकृष्ण कोणाच्या अत्याचारापासून मथुरा सोडून द्वारकेला गेले? हा बोल. कंस. कंस नाही, जरासंघ. राईट उत्तर आहे जरासंघ. सर्वात जुना वेद कोणता? एकूण 4 वेद आहेत. वेदांपैकी सर्वात जुना वेद कोणता आहे? श्रावणी बोल. ऋग्वेद. बरोबर आहे. ऋग्वेद. ऋग्वेद. आता वेद 4 आहेत, मी आताच सांगितलं. मग त्या वेदांची नावं सांगणार का? 4 वेदांची नावं. कोणाला येतात का? हा श्रवणी बोल. श्रवणीचा. ऋग्वेद. हा. यजुर्वेद. यजुर्वेद, ऋग्वेद बरोबर आहे. अजून सामवेद, अथर्ववेद. महाराज परीक्षित कोणाचे पुत्र होते? महाराज परीक्षित कोणाचे पुत्र होते? तो अर्जुनाचा मुलगा होता. हा बोल श्रवणी. अभिमन्यू. अभिमन्यू आणि उत्तरा. व्हेरी गुड. अभिमन्यू आणि उत्तराचा पुत्र होता महाराज परीक्षित. ओके, व्हेरी गुड. काही काहींनी ट्राय केलं, काही काहींना नाही जमलं. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. पुढच्या वेळेला करायचं आहे. आता सगळ्यांनी स्टुडिओ मधून लेफ्ट व्हायचं आहे आणि व्हॉट्सअपचे मेसेज चेक करायचे. व्हॉट्सअपच्या मेसेज मधून तुमचं जर नाव आलं फायनल राऊंडला तर मग तुम्हाला परत एकदा चान्स मिळेल पार्टिसिपेट करायचा. पण त्यासाठी व्हॉट्सअपचे मेसेज चेक करायचे. उगाच स्टुडिओ मध्ये इनपुट व्हायचं नाही. अंडरस्टूड? समजलं? ओके, नाउ लेफ्ट द स्टुडिओ. बाय. धन्यवाद. और बच्चों के फाइनल राउंड के अंदर अनुषा जोशी, हर्ष नार्वेकर, आराध्या
बार्थेलिया और श्रवणी, 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे अभी स्टूडियो में आ जाइए प्लीज। आराध्या, आदित्य, हर्ष और अनुषा।